गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की थियोरी, वन शॉट थियोरी, सेम थियोरी दैट वी डिस्कस्ड फॉर गुजराती मीडियम। एंड फ्रॉम टुडे onwards for upcoming 9 days you will get the theory of all 9 chapters in just within 10 minutes. So today let us start with the chapter 2 of part 1, linear correlation. The things that I have noted in the board, आपको सिर्फ उतना ही करना है और उतना करने से you will be able to attend the section A and B with full confidence. So let's start. So the first thing that we have is the definition of cause and effect relationship. Usually ये question जो है वो 3 marks में पूछा जाता है. Explain the cause and effect relation. So how will you explain? First you must know the meaning of cause and effect. Tell me, anybody knows what is cause and effect? Or how will you answer me? Sorry. Cause and effect relationship means what? Basically, we know that there are two variables, right? X and Y. So when variable y is affected by the change of the variable x, catch my words. When the variable y is affected by the change in the values of variable x, then we can say that x and y are correlated. Say example, if x increases or x decreases in whatever situation, अगर उसकी इफेक्ट y पे हो रही है तो उन दोनों के बीच में cause and effect relationship है, हम ऐसा बोल सकते हैं. So the same thing that we have noted in the board, that when value of variable y increases or decreases due to change in the value of variable x, y increases or decreases due to change in the value of variable x, that is known as cause and effect relation. Now we are given two examples here. First is price and demand and second is sales and profit. If price increases, price is the variable x. X is always independent and y is always dependent. So demand is affected by price. If price rises, demand fall. If sales increases, so you will see the increment in profit also. So we can say that these two variables are correlated, right? Now move on to the next definition, that is correlation. Most time the definition chances are very high to be asked in the exam. When I forget to note, when there is डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स. जब किसी दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन की वजह से कोई चेंज देखने को मिलता है ऑफ टू वेरिएबल्स x and y ड्यू टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, देन इट इज नोन एज कोरिलेशन. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ चीजों का इफेक्ट डायरेक्ट होता है. से एग्जांपल, इफ प्राइस ऑफ वेजिटेबल रेजेस, सो इट इज बट नेचुरल दैट द डिमांड विल फॉल. थोड़ा सा कम आपको डिमांड दिखेगा. अगर पेट्रोल का प्राइस राइज होता है तो उसकी वजह से वेजिटेबल का डिमांड कम हो सकता है. क्यों? क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो हर एक चीज महंगी होगी जो आप इंपोर्ट करते हो. यस और नो? तो अगर पेट्रोल महंगा होगा तो वेजिटेबल का डिमांड कम, क्योंकि वेजिटेबल महंगा हो जाएगा. पेट्रोल महंगा होने की वजह से वेजिटेबल महंगा होगा. वेजिटेबल महंगा होगा तो यूज कम होगा. अब ये समझ में आता है कि वेजिटेबल का दाम बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा, बट पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से वेजिटेबल का डिमांड कम होना क्वाइट अ इनडायरेक्ट थिंग, राइट? सो when there is direct or indirect change in the values of two variables x and y due to cause and effect relation, ये दो words आपको लिखने बहुत जरूरी है, direct and indirect change and cause and effect relation, then it is known as correlation, right? Again there are two types of correlation. IMP question बच्चे गलतियां कर देते हैं कि 5 टाइप लिख देते हैं. 5 टाइप नहीं है, 2 ही टाइप है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Positive correlation means what? When the changes in the two variables are in same direction. X बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा. That is direct. That is positive. Now what is negative correlation? When the directional change are opposite to each other. एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. Say example, अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगा. अगर आप सरफेस से हाइट बढ़ाते जाओगे तो हम स्पेस में जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रपोर्शन कम होता जाता है, तो वो नेगेटिव है. जैसे ही आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, आप सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो वहां पे आपको ऑक्सीजन कम मिलेगा. दैट इज अ नेगेटिव रिलेशन. एक और एग्जांपल बता देती हूँ. अगर आप अपना एक्सपेंस बढ़ाएंगे तो आपका सेविंग कम होता जाएगा. द मोर द एक्सपेंसेस द लेसर विल बी योर सेविंग, राइट? सो दैट इज negative correlation. So let us revise it once more and fast forward. What is cause and effect relationship? When the values of variable y increases or decreases due to change in the value of variable x, that is known as cause and effect. We have given two examples also. Next is what is correlation? When there is
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस, साइमल्टेनियस वर्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हो, व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस चेंजेस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स x and y ड्यू टू cause and effect relation, then it is known as correlation. There are two types, positive and negative. Positive correlation, same direction change. Negative correlation, opposite direction change. Next is correlation coefficient और next definition, most time की definition, इसके properties भी पूछे जाते हैं। तो ये है इट इज अ मेजर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, एक मेजर है ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का रिलेशन है, हमने देखा प्राइस और डिमांड में रिलेशन है, सेल्स और पर कितना है, उनकी रिलेशनशिप की इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, दैट इज नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। समझ आ रहा है? So that is correlation coefficient which has four properties. See, these are the properties. It is denoted by R. Its value is in between -1 and +1. It is a unit free measure. It is independent of change of origin and change of scale. Now you must know what is change of origin. Change of origin means changes of plus and minus, and change of scale means changes of multiplication and division. इन किसी चीज का इस पे असर नहीं होता है, right? So there are four properties. First is denoted by R. Second is values in between -1 and +1. Third, it is unit free. Fourth, it is independent of change of origin and scale. Let's move forward to the three methods of correlation that we studied. First one is scatter diagram method. इसमें आपको 5 अलग-अलग डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, राइट? चलिए, ये है परफेक्ट पॉजिटिव जहां पे R होता है 1। इसका डायग्राम देखो, स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोप। This one is perfect negative. You will see the downward graph where the value of R is going to be -1. When it is partial positive, then it is between 0 and 1. तब वो 0 और 1 के बीच में होता है. When it is partial negative, then the value of R is in between -1 and 0, and when there is no relation between x and y. काफी बार ऐसा होता है, दो चीजों के बीच में कोई cause and effect होता ही नहीं है. cause and effect होगा तभी तो relation फाइंड करेंगे ना. जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि भाई number of vehicles increasing in Verawal and number of accidents increasing in Ahmedabad, that has no relation. यहाँ पे vehicles के numbers बढ़ेंगे तो अहमदाबाद में accidents होंगे, no connection is there, right? So there is a lack of correlation. उसको क्या बोला जाता है? Lack of correlation, no direction. यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं वो randomly scattered है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, भले ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है बट अपवर्ड तो है ना, ये भी नेगेटिव है, डाउनवर्ड फॉल तो है, उसमें स्ट्रेट लाइन होना ना होना डजंट मैटर, बट लीनियर रिलेशन होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेक ऑफ लीनियर कोरिलेशन भी बोल सकते हो या लेक ऑफ कोरिलेशन भी बोल सकते हो। अब इसमें से क्या पूछा जाता है? स्कैटर डायग्राम मेथड का डीमेरिट पूछा जाता है एवरी टाइम, बहुत बारी आया है। यहाँ पे आप टाइप डिसाइड कर सकते हो। We can decide the type of correlation but cannot give exact measure. हम उसका टाइप बता सकते हैं कि कौन सी टाइप का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। दैट इज द बिगेस्ट डीमेरिट एंड ओनली वन डीमेरिट ऑफ दिस मेथड। अदरवाइज दिस मेथड इज वेरी इजी, लेस कैलकुलेटिव, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे मेरिट्स हैं। डीमेरिट सिर्फ एक ही इसलिए पूछा जाता है इन वन लाइन। नाउ move forward to the next method, that is Carl-Pearson's method. The question is when this method is used. अगर आपको एग्जाम में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आपको कार्ल का ही मेथड यूज करना है बिकॉज ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ दिस चैप्टर, राइट? कार्ल पियर्सन की मेथड की दो अजम्पशंस है। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि आपको ये मान लेना है कि जो भी दो वेरिएबल आपके सामने दिए गए हैं उनके बीच में कोरिलेशन है, उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट है, उनके बीच में लीनियर कोरिलेशन है। ये मान के ही हमें सम स्टार्ट करना है। अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन, देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट है, वो मान लेना है। और दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर कोरिलेशन है, वो भी हमें मान लेना पड़ेगा, फिर ही हम सम आगे कर सकते हैं। ये जो अजम्पशंस है वो 1 मार्क में आएंगी, सो टेक नोट ऑफ इट। नेक्स्ट पूछा जाता है व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ आर। फंडामेंटल फॉर्मूला, टोटल वी हैव 6 फॉर्मूलास इन कार्ल्स मेथड, जिसमें ये फंडामेंटल है। इसके बेसिस पे रेस्ट ऑफ द 5 आर मेड, इसके अकॉर्डिंग बाकी की 5 बनाई जाती है। सो दैट इज आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन sx इनटू xy। अब इसमें से एक सवाल आएगा
कि r की साइन कैसी होती है, साइन प्लस और माइनस, तो उसका साइन किस पे डिपेंड करता है, द साइन ऑफ r डिपेंड ऑन दी न्यूमरेटर। जैसा न्यूमरेटर का साइन होता है वैसा r का होता है। अब न्यूमरेटर में आप क्या लिखते हो तो वो भी पूछते हैं, व्हाट डज द न्यूमरेटर शो इन r's फॉर्मूला, दैट इज कोवेरिएंस ऑफ xy। वीडियो पूरी सुनेंगे तभी आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे नहीं भी लिखे हैं, तो सुनना जरूरी है, ठीक है। तो साइन ऑफ r इज ऑलवेज एज न्यूमरेटर, एंड व्हाट डज द न्यूमरेटर शो, न्यूमरेटर शो कोवेरिएंस ऑफ xy। मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। सबसे बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट, कार्ल और स्पीयरमैन में डिफरेंस क्या है पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, कार्ल इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव डेटा, जिसके यूनिट्स होते हैं केजी, रुपीस, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, समझ आ रहा है। whereas when it comes to the quality we need to use spearman. Spearman is used for qualitative data, means आप बोल सकते हो honesty, strength, beauty, जिसके कोई measures नहीं होते हैं। और दूसरा रीजन ये भी पूछा जाएगा कि स्पीयरमैन कब यूज होता है, तो पहला रीजन है कि जब डेटा क्वालिटेटिव नेचर का होगा, एंड दूसरा व्हेन यू विल सी द मोर डिस्पर्शन बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशंस। आपको एक्स और वाई के ऑब्जर्वेशंस जब दिए जाएंगे, आपने नोटिस किया होगा कि कार में वो सारे एक ही सीरीज के होते हैं, 110, 112, 120 आजू बाजू के होते हैं। बट जब भी स्पीयरमैन का होगा तो वहां पे गैप हो सकता है, पहला ऑब्जर्वेशन मान लो 50 होगा तो दूसरा 125, तीसरा 336, चौथा 500 हो सकता है। तो इन सबके बीच में आप गैप देखिए बहुत है, तो तभी भी आपको स्पीयरमैन का यूज करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसमें से कौन से क्वेश्चंस वन लाइनर में या एमसीक्यू में आ सकते हैं। फर्स्ट थिंग, जब भी Rx इक्वल टू Ry होगा, जब आप रैंक्स लगाते हो और मान लो दोनों के रैंक्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, Rx भी 1 2 3 आ रहा है, Ry भी 1 2 3 आ रहा है, तो तब आपके कोरिलेशन का आंसर आएगा 1। कभी कभी क्या होता है, दोनों की जो रैंक्स होते हैं कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट मतलब x को मान लो ऐसे 1 2 3 दिया होगा तो y का ऐसे 3 2 1, दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू वन अनदर। तो इस सिचुएशन में आपके r का आंसर आएगा -1। इन दिस सिचुएशन यू विल गेट द आंसर दैट विल बी -1। अब आता है ये 2017 में पूछा गया था एमसीक्यू, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स सिग्मा d इज ऑलवेज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी डी, आंसर इज 0। हमने चेक किया है Rx माइनस Ry जब आप बनाते हैं कॉलम तो उसको हम D बोलते हैं, उसका टोटल हमेशा कितना आना चाहिए, 0। सो दैट इज द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CF। आपको पता होगा कि जब भी ऑब्जर्वेशन के रिपीटेशंस होते हैं तभी हम वो CF वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो व्हाट इज CF देयर, CF मींस करेक्शन फैक्टर। व्हाट इज CF, करेक्शन फैक्टर। अब पूछा जाता है CF को इलैबोरेट करिए, आपको ऐसा पूछेंगे व्हिच टर्म इज एडेड टू सिग्मा d स्क्वायर। सिग्मा d स्क्वायर में कौन सा टर्म ऐड किया जाता है, वो CF तो है, उसका फॉर्मूला क्या है, m³ माइनस m/12। और आज के दिन के दो फ्री हिट्स आपके लिए, ये 2 पॉइंट्स। सबसे पहला, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे कार्ल और स्पीयरमैन का आंसर सेम आता है। The situation is when the observations of x and y are n natural numbers. First n natural numbers, so the answer of Karl and Spearman will be the same. Only one situation, otherwise in no situation you will get the answers of same answers. बाकी किसी सिचुएशन में आपको सेम आंसर्स नहीं मिलेंगे, इसी सिचुएशन में मिलेंगे। सेकंड, आज के दिन का एक नया पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि R एक कैसा मेजर है, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव मेजर है। सो द आंसर इज R इज द relative measure. So enough for today. See you in the next video with the new chapter, linear regression. If you find it necessary, then do like my channel, subscribe, share and comment. Thank you so much.